Good morning, students. Now, welcome to the Rashmi Singh classes. Today's topic is the Indian Constitution, Bharatiya Samvidhan. But before we discuss this topic, I want to ask one question. जब आप स्कूल जाते हैं तो what is the important thing to follow in the school? सबसे जरूरी चीज क्या है जो स्कूल में फॉलो करनी होती है? Correct. The rules and regulations. We have to follow rules and regulation in the school. For example, to obey and respect your teacher, come to school regularly, maintain discipline and decorum of the class and school. Means all these rules you have to follow. If we are not following all these rules, then what will happen? क्या होगा? स्कूल स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा. फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल स्मूथली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल दीज रूल्स. सेम फॉर द कंट्री. अगर कंट्री में भी हम रूल्स को फॉलो करेंगे देन द कंट्री विल रन स्मूथली एंड डेमोक्रेटिकली. क्लियर? देन वी हैव टू सेट सम रूल्स दैट द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैज टू फॉलो, एंड दीज रूल्स are compiled in a book, and that is known as the Constitution. Clear? Now this is the definition. Constitution, it is a set of written rules and laws according to which a state is governed. जिससे हमारा देश गवर्नमेंट चलाती है वो सब rules and regulations are written in the Constitution. Means Constitution gives the guidelines to the government to run the country. So it's very important for us. Clear? And constitution are of two types, written constitution and unwritten constitution. But when we are talking about the Indian Constitution, our Indian Constitution is written and this is the lengthiest constitution of the world. हमारे वर्ल्ड का सबसे lengthiest constitution है वो Indian Constitution है, and it is framed by Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इसको फॉर्म किया है. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया इन 1946. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई और उन्होंने हमारे फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया. 3 years के ऑलमोस्ट 3 years एंड सम मंथ्स दे कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ द Constitution for Free India, but it came into existence on 26 January 1950. 1950 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट किया गया या लागू किया गया. तभी हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी. क्लियर टू ऑल? सो what is Constitution? Constitution is a set written rules according to which the country is governed. Clear? Now what is the need of constitution? जरूरी क्यों है? क्यों हर कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, चाहे वो रिटन हो चाहे अनरिटन हो, कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है? What is the need? Now come to this side. Number first need is it lays out certain ideals that for the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. What does it mean? Aspire. Aspire means a great desire to live in that special ideals or condition of the country. Means जिस तरह कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं वो किस तरह के आइडियल कंडीशन और सिचुएशन चाहते हैं, वो हमारी सारी चीजें किसमें समाहित होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में. That's why it's very important. We can take one example of Nepal. Previously the Nepal was the monarchical country. Monarchy country थी and King Gyanendra was there, but the people of the country did not like the condition and situation at that country. They struggled a lot and they wanted to establish democracy in Nepal. Clear? And ultimately in 2008 उन्होंने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर दिया एंड दे डिमोलिश द मोनार्की एंड दे हैड मेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर ओन कंट्री. क्यों उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया?
क्योंकि वो जो चाहते थे, जो उनकी ग्रेट डिजायर थी उस कंट्री में रहने के लिए, आइडियल कंडीशन की, वो सब चीजें उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। एंड द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, वो क्या करता था, उन्होंने उस वो कंडीशंस लोगों को नहीं दी थी। दैट्स व्हाई दे वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए जरूरी है? क्योंकि हम किस तरह की कंडीशन में रहना चाहते हैं वो हमें एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी बताता है। आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और थियोक्रेसी। कौन सी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रन करती है? क्लियर? इट क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। एंड द थर्ड, it is a safeguard against the powerful authorities. As you know that India is a democratic country and we choose the leaders, representatives to run the country. And sometimes there is you can say एक बहुत बड़ा सा हमेशा हमको एक डर लगा रहता है कि कहीं ये जो हमारे सिलेक्टेड या इलेक्टेड लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज ना करना शुरू कर दें। उस मिसयूज से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस या प्रोवाइड्स अस सम सेफगार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट। क्लियर? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दीज फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। मीन्स ईच एंड एवरी सिटीजन गेट्स दीज राइट्स, ताकि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे ऊपर अपनी पावर और अथॉरिटी का कोई मिसयूज ना कर पाए। दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4, इट एंश्योर्स दैट डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज देयर पावर। हमें आप पता है कि हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, डाइवर्स कम्युनिटीज, और कोई कम्युनिटी मेजोरिटी वाली होगी, कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी वाली होगी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट नहीं करे। क्लियर? किसके लिए? इसके लिए उन्होंने एक अलग देश कंटेन अ सेट ऑफ रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दे गिव्स द सेम प्रिविलेजेस, सेम राइट्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप विच इज गिवन टू द मेजोरिटी ग्रुप। We cannot exclude this minority group from the mainstream. mainstream से हम उनको अलग नहीं कर सकते। जैसे प्रीवियस टाइम में क्या होता था, एंशियंट टाइम में जो हाई क्लास हिंदूज होते थे वो दलित्स के साथ क्या करते थे? दलित्स वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द सेम वेल, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, दे हैड टू लिव आउटसाइड द सिटीज। बट अब ऐसा नहीं है, बिकॉज वी गेट द सेम राइट्स एंड सेम प्रिविलेजेस, वी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। Clear? That's why this constitution is very very important for a country. Clear? And fifth one, we need constitution to save us from ourselves. It sounds strange, सुनने में अजीब लग रहा है, हमको हमसे ही कैसे बचा सकता है? कई बार क्या होता है, out of frustration, we are living in a democratic country and out of frustration we think democracy is not good. क्यों नहीं good है? Because it takes a lot of time for taking any decision. And if we want to make a law, then again it takes a lot of time. तो क्या फायदा? इससे तो बेटर है मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। क्विक डिसीजन होता है, क्विक सजा मिल जाती है जो कल्प्रिट है। तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो यूजलेस है। बट हमारी डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं, वी कैन नॉट थ्रो आउट दीज प्रोविजंस बिकॉज दीज प्रोविजंस गिव्स अस फ्रीडम and equality in the country. और ये freedom और equality we don't get in the monarchy government and in the dictatorship. That's why हमको ये constitution है protect करता है इस टाइप के वेव्स या इस टाइप की सनक या इस टाइप के डिसीजंस लेने से जो लॉन्ग रन में हमारे लिए और हमारी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूशंस नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री है,
ये तो आपकी बुक में दे रखा है। एक बेटा मैं और बताना चाहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द फंक्शन एंड पावर ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। वी नो दैट द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स, तीनों ऑर्गन्स आर सो इम्पोर्टेंट और वो एक दूसरे की पावर को यूज ना करें या एक दूसरे में इंटरफेरेंस करें। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच organ of the government. In this way, we can say that it is a need of a country to make a constitution. Clear to everyone? So, बेटा next session में हम main features of the constitution. What are the main features of the constitution? We'll do it in the next session. And now sum up it again. The Indian constitution. Indian constitution means भारतीय संविधान. भारतीय संविधान किसने बनाया? The Constituent Assembly. और कब बन के तैयार हुआ? बन के तैयार हो गया था 1949 नवंबर, बट हमने 2 महीने वेट किया, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किया ऑन 26 जनवरी 1950. एंड देयर आर 2 types ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, फर्स्ट क्या है? इट लेज डाउन सर्टेन आइडियाज दैट form the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live. Means वो ऐसे इसके अंदर आइडियल कंडीशन एंड सिचुएशन इनकॉर्पोरेट करती है जो कि जो सिटीजन है उस कंट्री के, वो उस आइडियल कंडीशन में रहना चाहते हैं. नेपाल का मैंने आपको बताया था. इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारी कंट्री में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, मोनार्की है और डिक्टेटरशिप है. क्लियर बेटा? एंड इट इज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी. वी चूज द लीडर एंड समटाइम्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स मिसयूज देयर पावर. तो उस मिसयूज, उनकी पावर को जो मिसयूज करते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? द फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? एंड इट एंश्योर्स दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज देयर पावर. बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, कुछ कम्युनिटीज मेजोरिटी में होती हैं, कुछ माइनॉरिटीज में होती है, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सम सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स दे कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन that every group, either the group is in minority or majority, they'll get the same privilege and right, and nobody can dominate the other group. Clear? And we need constitution to save us from ourselves. हमारा जो constitution है उसे कई बार हम लोग गलत ढंग से सोचते हैं, उससे भी बचाता है. ठीक है, कि लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में डिक्टेटर एंड मोनार्की इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. डेमोक्रेसी, तो ये कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिससे हम ये जो हमारी एक सनक है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, फेम्स है, उसको स्टॉप कर देता है और हमें सही डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर देता है. तो दीज आर द रीजंस. वन मोर रीजन, इट ऑल्सो क्लियरली डिफाइंस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर? So these are some points in which we can say that the country needs a constitution. Clear? समझ में आया बेटा? बहुत अच्छा है. नहीं समझ में आया, then second part में दोबारा से आपको मैं समझाऊंगी, और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ओके, नाउ थैंक यू बेटा.